Very last poem in your book by Ezra and Metro Paris. And this is a very short, a very concise, brief poem, just written it comprises of 2 lines, hardly 2 lines, and there is an introduction about Ezra Pound. He is a 20th century influential poet. He is considered the founder of imagism. He is the founder of the movement of imagists. Imagism एक इन्होंने movement चलाई थी, and the group of poets, they were called imagists, and their purpose was to use fewer possible words, जिसमें सारे extra words निकाल के बहुत कम words के साथ पोइट्री कंपोज की जाए, जो कि कन्वे करे, जो वर्ड्स हों वो इमेजेस हों एक्चुअली, जो कन्वे करें बहुत कुछ. दे यू कैन से कि वर्ड्स, fewest possible words were used, and those words were actually images. images कहते हैं ऐसे words जो आप जिनको आपके 5 senses फील कर सकते हो. 5 senses होते हैं: टच, टेस्ट, स्मेल, sight, and you can say hearing. Auditory images भी होते हैं. So उनके ऊपर बेस की जाए पोएम, जिसमें एक्स्ट्रा सारे वर्ब्स निकाल दिए, एडजेक्टिव्स अननेसेसरी निकाल दिए, तो उसके ऊपर ये पोएम बेस करते हैं और वो कन्वे करती हैं बहुत ज़्यादा मीनिंग. फॉर एग्जांपल हिज पोएम इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो बाय एज़रा पाउंड, and this is the whole poem. The apparition of these faces in the crowd, petals on a wet blackboard. This is the whole poem. और इसमें इनकी टेक्निक है, they use metaphors, they use images, और ये literary devices use करके poem जो है he has written this poem. The apparition over here means ghostly appearance, ghost-like appearance. Spirit को बोलते हैं apparition. You can say something which doesn't exist actually in a bodily form. In a spiritual form में हमारी जो existence है उसको apparition बोलते हैं, या एक ghost को बोलते हैं. Apparition of these faces in the crowd, and the crowd over here is Metro Paris. It is an underground railway station. Crowd जमा कहाँ है? Underground railway station में, in a subway. और crowded subway में जो लोग हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे they are like ghosts, they appear like ghosts. और उनको compare किससे किया है further, उन ghost like faces को in a crowd. Petals on a wet blackboard. This is a metaphor. The faces of the people have been compared to petals, जिसमें petals ज़ाहिर फूल की पत्तियाँ होती हैं और वो बड़ी जल्दी मुरझा जाती हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं. एक तो लाइफ को कंपेयर किया है, which is short lived, which is transitory, which is very temporary and very fragile. We humans are just as fragile as flowers. We do not know it ourselves, लेकिन we are also very short lived, and uncertainty है about our life. On a wet black bow. A wet black bow suggests here absence of sunlight. Wetness indicates, you can say, subway में sunlight नहीं पहुंच सकती. So बहुत से meanings ये lines convey कर रही हैं. Apparition of these faces. These faces are ghost-like. These are the faces of this, you can say, 20th century, जो कि age of, you can say, materialism है. इसमें rushed life है, busy life है. People have lost, you can say, energy, vitality, youth, और जो एक पहले लोगों में हुआ करती थी, color and strength and all this. So apparition of these faces in the crowd, crowding है, overpopulation है world में. Overpopulation को एक कहने के ये कह सकता है कि the poem is conveying multiple meanings. एक तो नंबर 1 तो जाहिर है उसने जो ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ है वो नंबर 1 इसमें मेटाफर यूज़ किया है, पेटल्स का वर्ड जो यूज़ किया है. बाकी ये भी जो इमेजेस हैं, apparition, ghost like faces, they convey the meaning that these faces lack energy, lack vigor, lack vitality, youth,
and there is absence of, you can say, color over here, absence of energy, and crowding, overpopulation, crowd, overpopulation in the world, उसको indicate कर रहा है. Petals on a wet black bow. Black bow over here, black is a symbol of misery, usually, of, you can say, hopelessness. Usually it is, black color is usually associated with, you can say, lack of hope, absence of sunlight. Absence of sunlight here indicates absence of life, absence of energy. So ये dilemma है modern age का, कि life is so busy and rushed and everything is so much full of, you can say, materialism and materialistic approach है कि हम nature से भी बहुत दूर हैं. सबवे itself ऐसी जगह है जो अंडरग्राउंड जाके होती है, और वहाँ सनलाइट नहीं आती, फ्रेश एयर भी मुश्किल से आती है. So इतनी मॉडर्न लाइफ मैकेनाइज्ड हो गई है कि वी आर अवे फ्रॉम नेचर, अवे फ्रॉम लाइट, अवे फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फ्रेशनेस. तो ये बहुत सारे मीनिंग्स इस पोएम में कन्वे हुए हैं. बाकी ये इमेजेस कौन थे इनका थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें. इमेजेस इसने यूज़ किए हैं, एपोरिशन इमेजेस है, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो इमेज है, क्राउड भी एक इमेज है कि हमारे जहन में आ गया है, बल्कि ये दो लाइंस पढ़ के ही हम फील कर रहे हैं कि हम एक क्राउड में मौजूद हैं, अंडरग्राउंड रेलवे में एक के बाद एक लोग नज़र आ रहे हैं और वहाँ अंधेरा है और फ्रेश एयर नहीं है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट है. लेकिन ये दो लाइनें पढ़ के ही हमें इतने सारे इमेजेस कन्वे हुए हैं कि हम फील कर सकते हैं. So images जो poem में यूज होते हैं, they are actually words which refer to any of the five senses: sight, hearing, auditory hearing, आपकी tactile touch, और odor या taste, आपके जो five senses होते हैं, कोई भी word उनको फील कर रहा होता है तो उसको image कहा जाता है पोइट्री में. यहाँ auditory image तो कोई नहीं यूज हुआ. फॉर एग्जाम्पल clatter का word snake में यूज हुआ था, with a clatter I threw the stick. तो clatter या कोई भी साउंड, ऐसा साउंड इमेजरी यूज हुई हो, उसको वहाँ पे उसको कहा जाता है ऑडिटरी इमेज. सो एंड देन एज़रा पाउंड की ये पोएम है. एज़रा पाउंड इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मूवमेंट ऑफ इमेजिज्म. एंड उनके क्या, ही सेड कि पोइट्स को क्या करना चाहिए, बहुत कम वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए, और ऐसा वर्ड जो कुछ कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो पोएम को कन्वे करने में, मीनिंग को कन्वे करने में, कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज़रा पाउंड. एंड दिस वाज द, यू कैन से, पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट, कि और इमेज जो है ऐसा यूज किया जाए जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कम्प्लेक्सिटी को फौरन ही बयान कर दे. इमेज भी जो है वो फुल ऑफ मीनिंग कन्वे यूज किया जाए. सो और एक सडन आपको फ्रीडम मिले, और जो लाइन कम से कम टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो, ऐसे इमेजेस यूज़ किए जाएं. सो 10 इमेजिस्ट की जो पोएम्स थी वो क्या कन्वे करती हैं, शॉर्ट एंड डायरेक्ट मीनिंग वर्ड्स, यूज ऑफ शॉर्ट एंड डायरेक्ट वर्ड्स, नॉट यूजिंग एक्सेसिव एडजेक्टिव्स और सेंटिमेलिटी. आप इसको कंपेयर कर लें सॉलिटरी रीपर से वर्ड्सवर्थ की, कि उसने इतने एक्स्ट्रा कंपैरिजन्स और इतनी एक्स्ट्रा वर्ड्स और इतनी डिटेल लंबी, कॉलरिज के कोबला खान से कंपेयर करके देख लें कि ये वर्ड सिर्फ 2 लाइन्स पे बेस्ड है और बहुत कुछ कन्वे कर रही है. वो कोबला खान काफ़ी लंबी पोएम्स, तो उसके बिल्कुल ये ऑपोजिट है. मेकिंग यूज़ ऑफ द राइम्स ऑफ ऑर्डिनरी स्पीच, फ्री वर्ड्स यूज़ किया जाता है, राइम स्कीम भी नहीं फॉलो की जा रही, या फिर कह लें कि राइमिंग वर्ड्स नहीं यूज़ करने की ज़रूरत अकॉर्डिंग टू द इमेजिस्ट, बिकॉज वो फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें ऐड करने पड़ते हैं अगर राइम स्कीम को फॉलो करें या उसी राइमिंग वर्ड्स के पैटर्न को फॉलो करें. और प्रिसीजन यानी कि प्रिसाइज होना चाहिए वर्ड्स के यूज़ में भी, और कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड है उसको बिल्कुल हटा दिया जाए. और ये कब हुई थी ये मूवमेंट? इट टुक प्लेस in England and America in 1908 till 1970. Our imagists का क्या purpose था? To use precise, clearly presented images in their work. वाज़े और थोड़े से images use करें, और common everyday speech, easy language use की. conciseness उनका purpose था. concrete images, concrete is solid images use किए जाएं, और न्यू रिदम्स, और मेकिंग इट न्यू बाय कटिंग इट डाउन, एक्स्ट्रा डिटेल्स सारी कट डाउन करके उसको एक नई फॉर्म दें.
So this is a picture of a underground railway station, and this is also called a subway. और ये क्राउडिंग यू कैन सी कि एक चेहरे ऐसे मिक्सड अप हुए लग रहे हैं वाकई जैसे कोई सेपरेट आइडेंटिटी ही किसी की फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाए. सो दिस इज द पोएम अबाउट